Hello everyone. Today we are solving exercise 5.5 and इसमें questions are based on the UV rule और the integration by parts जिसको हम बुलाते हैं and वो e raised to x into f of x plus f dash of x वो वाला rule. ठीक है, तो let's start with the first question. So first question में we have integration of x log x. Now if you remember we had LAE rule जिसमें भी जो पहले आता है वो u लेते हैं, बराबर. तो L इज फॉर लॉग, तो यहाँ पे लॉग है तो ये बेसिकली अपना U है और ये होगा V. ओके, नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला इज U इंटीग्रेशन ऑफ V, सो दैट इज log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx. ठीक है, माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन होता है, इसके अंदर अगेन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डेरिवेटिव ऑफ U. So this will become integration of x into d by dx of log x. Fine. Now let us simplify these terms. So then we get that this is log x into integration of x क्या होता है? It is x square by 2 minus integration of, अभी वापस integration of x is x square by 2 into derivative of log x. Derivative of log x is 1 by x dx. ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग और इसको आगे लिख देते हैं. सो दिस इज x स्क्वायर log x डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये कट होने पे ऊपर सिर्फ x रह जाएगा और मैं वो हाफ ना बाहर निकाल देती हूँ. सो आई एम लेफ्ट विद ओनली इंटीग्रेशन ऑफ x dx. So then this is equal to x square into log x divided by 2 minus x square divided by 4 plus c. Okay, and that is the answer. Let's do the next question now. In the second question, we have x square and e raised to 4x. LAE rule से algebraic मतलब x square वो सब आता है, e मतलब exponential होता है. a पहले आता है ना, तो यहाँ पे जो ये x स्क्वायर है ना वो है अपना u और ये e raised to 4x is our v. Now let us apply the formula. So this is equal to u पहले ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, तो मैं बाहर x स्क्वायर लिख रही हूँ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर वापस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 4x dx into d by dx of u which is x square. ठीक है, dx. Now this is equal to x square. e raised to 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? It will be e raised to 4x divided by 4, right? क्योंकि it is e raised to ax plus b के टाइप का. So then this is e raised to 4x divided by 4 minus integration of e raised to 4x divided by 4 into x square का derivative is 2x dx. Fine. I'll simplify this now. So I get that this is equal to x square e raised to 4x divided by 4 minus, ये कट होने पे I get a half and then I am left with x e raised to 4x dx. अभी इसको इंटीग्रेट करना डायरेक्टली इज नॉट पॉसिबल. दिस इज अगेन सम टू फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हमें वापस यूवी रूल अप्लाई करना होगा. ठीक है, सो यहाँ पे भी अगेन दिस इज algebraic, so this is u and this is exponential, so this is v. Okay, so therefore this is equal to, so it is u integration of v minus integration of v into derivative of u dx. तो ऐसा होता है कभी कभी कि एक ही क्वेश्चन में हमें 2-3 बार भी अप्लाई करना पड़े. ठीक है, तो यहाँ पे अभी सब सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू x square e raised to 4x divided by 4
minus half, यहाँ पे we'll have x e raised to 4x divided by 4 minus, now यहाँ पे we have integration of e raised to 4x divided by 4 and x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, so this is just dx. okay, अभी we have to only integrate e raised to 4x which is again e raised to 4x divided by 4. यहाँ पे 16 हो जाएगा. So this is equal to x square e raised to 4x divided by 4 minus half into bracket में x e raised to 4x divided by 4 and here we have e raised to 4x divided by 16 plus c, and now we can open it throughout. So therefore we get that this is equal to x square e raised to 4x divided by 4 minus x e raised to 4x divided by 8 minus e raised to 4x divided by 32. एक्चुअली ये प्लस होना चाहिए, माइनस और माइनस, ठीक है, प्लस सी. हम यहाँ से एक्चुअली e raised to 4x कॉमन लेके भी इसको रख सकते हैं, तो वो कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग हर जगह से ना जो भी कॉमन निकाल सकते हैं पहले 3 टर्म का वो कर लेते हैं. सो दिस इज e raised to 4x डिवाइडेड बाई भी 4 में कॉमन निकाल सकती हूँ ना, तो दिस वुड बी एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे होता है x बाई 2 एंड यहाँ पे होगा 1/8 प्लस c. फाइन. ओके, सो दैट इज आवर आंसर. यू कैन लीव इट हियर ऑल्सो या फिर इधर भी, वॉट एवर यू फाइंड इजियर वैसे करो. थर्ड क्वेश्चन में वी हैव x स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x. नाउ इफ यू ऑब्जर्व ये बहुत सिमिलर है सेकंड क्वेश्चन से ही. इसमें भी हमें एक्चुअली इंटीग्रेशन 2 बार करना पड़ेगा बाय पार्ट्स, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज u बिकॉज ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये v है. दिस इज इक्वल टू u ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन उसके अंदर वापस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर dx. Okay, I'm sure that अब तक if you have been watching the previous videos also and this video also, तो अभी फॉर्मूला बाय हार्ट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब वो काफी नेचुरली आ जाता है, ठीक है. सो दिस इज एक्स स्क्वेयर ई रेज टू 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x डिवाइडेड बाई 3, इस छोटे वाले इंटीग्रेशन को इवेल्युएट किया, इंटू 2x dx. फाइन. ना इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं और फिर वापस हमें इंटीग्रेट करना है उसको. सो दिस इज u and this one is v. So then this is equal to x square e raised to 3x divided by 3 minus 2 by 3. Then this is x integration of e raised to 3x dx minus integration of e raised to 3x dx into d by dx of x. Which is equal to x into e raised to 3x divided by 3 minus integration of, this will be e raised to 3x divided by 3, x का डेरिवेटिव 1 है, so just dx. ओके, एंड अभी सिर्फ इसका ही इंटीग्रेशन करना है, फिर हो गया. सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x डिवाइडेड बाई 3 minus 2 by 3 x e raised to 3x divided by 3 minus e raised to 3x divided by 9 हो जाएगा ना, एक और 3 नीचे आएगा, प्लस c. एक्चुअली हम लोग जब भी एक भी बार इंटीग्रेट कर लेते ना, हमें एक प्लस c डाल देना चाहिए, लेकिन अगर एंड में भी एक बार लिख दोगे तो इट इज ओके, मतलब ठीक है, चल जाएगा. तो वही इसलिए, नहीं तो एक्चुअली हर एक स्टेज पे एक कांस्टेंट आ जाना चाहिए था जैसे ही हमने इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है. तो अभी यहाँ पे ऑन सिंप्लीफाइंग आई गेट दैट दिस इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x डिवाइडेड बाई 3
minus 2x e raised to 3x divided by 9 plus 2 divided by 27 e raised to 3x plus c. Okay, here also we can take e raised to 3x and 3 common and फिर हमें कुछ अंदर मिलेगा, या फिर इधर भी रख सकते हैं. In the fourth question, we have integration of x cube into e raised to x square. Now, e raised to x square is something जिसका integration we don't know. So, we have to make a substitution over here. Okay. So, I substitute x square as some variable t. Fine. Let's see what happens. So, if I substitute x square as t, then I get that x dx is equal to dt. 2x actually. Right. And what I can do over here is that I can write this as x into x square. ठीक है, मैंने x cube को ऐसे split किया into e raised to x square dx. Fine. तो ये x dx हो जाएगा dt by 2. ठीक है, हम वही लॉजिक से सोचें और ये x square को भी मैं t डाल दूंगी. So therefore on substituting I get that this is equal to t नीचे आएगा, e raised to t भी आएगा and x dx के बदले आएगा dt by 2. Fine. Now this is equal to integration by parts, right? जिसमें t is the algebraic function. So this is u and this is v. So this is equal to t integration of e raised to t dt minus integration of e raised to t dt into derivative of t. सब कुछ हमें t के रिस्पेक्ट में करना है. ठीक है, वेरिएबल हैज चेंज्ड. सो नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ t इंटू e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इज द सेम एंड इसका डेरिवेटिव तो 1 है. राइट. सो अभी इसको हमें वापस इंटीग्रेट करना है. सो वी विल जस्ट गेट e रेज टू t ओनली. सेम ही रहता है वो. Plus c. Fine. Now let us substitute the value for t. So therefore we get that this is equal to half. Then here we have x square e raised to x square minus e raised to x square plus c. अगर चाहिए तो इसमें से x square minus 1 भी निकाल सकते हैं e raised to x square को कॉमन निकाल के. ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो. I'll write that down. This is half ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस सी. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. फिफ्थ क्वेश्चन में वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स. फाइन. नाउ दिस इज ऑफ दैट टाइप ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, और उसका आंसर आता है डायरेक्टली ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्टली उसी फॉर्म में है. तो हम लिख देते हैं लेकिन कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज एक्चुअली एक्स रेज टू माइनस 1. तो माइनस 1 नीचे आता है, फिर एक्स रेज टू माइनस 1 मतलब एक्स रेज टू माइनस 2, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. So therefore, I can say that this is of the type e raised to x into f of x plus f dash of x. वो माइनस साइन तो डेरिवेटिव के अंदर ही है dx. So इसका आंसर होता है e raised to x f of x plus c. So therefore, the answer for our integral is equal to just e raised to x divided by x plus c. So that's it. इतना ही easy है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर. अभी यहाँ पे वी कैनॉट, मतलब अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो मैं माइनस 1 प्लस 1 करती तो फिर वो कट हो सकता था. यहाँ पे तो एक्स ही है, तो मुझे कोशिश करना है कि मुझे एक्स प्लस 1 आए. तो यहाँ पे मैं प्लस 1 माइनस 1 करूंगी तो फिर मुझे डिनोमिनेटर एक जगह पे आ जाएगा. सो देयरफॉर आई कैन राइट दिस एज एक्स प्लस 1
-1 divided by x plus 1 the whole square dx. Okay. Now on splitting this, I get that this is equal to e raised to x 1 divided by x plus 1 minus 1 divided by x plus 1 the whole square. Can you observe how I got x plus 1? This is x plus 1 divided by x plus 1 the whole square. तो एक कट हो गया, नीचे ही रह जाता है dx. Fine. Now इसमें if you observe, इसको अगर f of x लिया तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा, जिस पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही. ठीक है. So if f of x is equal to 1 divided by x plus 1, then f dash of x is equal to -1 divided by x plus 1 the whole square. क्योंकि यहाँ पे x plus 1 का डेरिवेटिव फिर भी 1 ही रहता है. So therefore इसका आंसर डायरेक्टली by the formula I am writing this time, it is equal to e raised to x divided by x plus 1 plus c. Okay. In the 7th question, we have integration of e raised to x into x minus 1 divided by x plus 1 the whole cube. यहाँ पे हम क्या करेंगे? Same trick as the previous one. We will try to get x plus 1 in the numerator also. So I have to do plus 1 minus 1 for that. So this becomes x plus 1, already एक minus 1 था तो अभी हो जाएगा -2 divided by x plus 1 the whole cube dx. Fine. Now I will split this. So in that case I get that this is e raised to x, then this is 1 divided by x plus 1 the whole square minus 2 divided by x plus 1 the whole cube dx. Right? x plus 1 the whole square कैसे हुआ? एक x plus 1 और एक x plus 1 नीचे से कट हो जाएगा. ठीक है. अभी इसके बाद हमें इसको लेना है एज अ फंक्शन, तो ये आएगा उसका डेरिवेटिव. देख लेते हैं. सो एफ ऑफ एक्स को अगर ले लेते हैं एज 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू -2. तो पहले -2 नीचे आएगा, फिर हो जाएगा एक्स प्लस 1 रेज टू -2 -1, मतलब एक्स प्लस 1 रेज टू -3, मतलब वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. एंड एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 1 ही है. ठीक है. सो यू कैन सी यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है. सो देयरफॉर इसका आंसर इज इक्वल टू जस्ट e रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस c. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन में वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स log x द होल स्क्वायर प्लस 2 log x डिवाइडेड बाय x dx. इस क्वेश्चन में इफ आई ऑब्जर्व, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो मुझे ये आएगा. ठीक है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगी और फिर ये आना चाहिए. ठीक है. तो हम ट्राई करते हैं. मुझे तो लग रहा है इसी से हो जाएगा. सो इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x द होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो दिस इज समथिंग रेज टू 2, तो उसके लिए इट बिकम्स दैट 2 इंटू दैट समथिंग, मतलब इट इज लाइक t स्क्वायर, तो इट विल बिकम 2t. तो t ओवर हियर इज log x इंटू log x का डेरिवेटिव विच इज 1/x. यही चीज आ रही है ना. तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द डेरिवेटिव. सो देयरफॉर द आंसर डायरेक्टली इज e रेज टू x इंटू log x द होल स्क्वायर प्लस c. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. जो 9th एंड 10th क्वेश्चन है उनमें एक्चुअली हमें पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और फिर हम लोग ये e रेज टू x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे. तो 9th वाले में हम log x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एज t. ओके. सो यू विल सी हाउ log x को सब्स्टिट्यूट करने पे वी गेट दैट फॉर्मूला. सो इफ आई पुट log x इज इक्वल टू t, देन इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/x dx is equal to dt. Fine. Now here if you see we don't have the value for x, so 1/x को मैं क्या लिखूंगी, right? तो मैं x का पहले वैल्यू ढूंढ लेती हूँ. So that is actually that x is equal to e raised to t. मैंने हर जगह पे e raised to कर दिया. Fine. So अगर ये ऊपर चला जाएगा तो इस साइड पे it will become e raised to t dt. Fine. अभी हम इसमें वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So therefore we have that this is equal to integration of e raised to t dt.
फाइन, और अभी बीच में क्या होगा, दिस विल बी 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। अब ये हो गया एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा जो हमने किया था e⁻x वाला। सो देयरफॉर ये है फंक्शन, ये है उसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर होता है e⁻t डिवाइडेड बाई t प्लस c। फाइन, अभी e⁻t क्या है, इट इज x and t is equal to log x. So it is x divided by log x plus c. That is the answer. तो ये एक ट्रिक है, जब भी ऐसा कुछ आता है तब we have to use the substitution that log x is equal to t. Okay. Now let us do the last question. Last question is also just like the 9th question only. So here again I substitute that log x is equal to t. So then I get that x is equal to e⁻t. On differentiating, I get that 1/x dx is equal to dt. Fine. So therefore, dx is equal to e⁻t dt. Now let us substitute. So we get that this is e⁻t into log x के बदले now I will write t divided by 1 plus t the whole square. ये एक्चुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले देखे हुए हैं, यहाँ पे हमें +1 -1 करना होता है। So this is equal to e⁻t t plus 1 minus 1 divided by t plus 1 the whole square, which is equal to e⁻t, फिर यहाँ पे होगा 1 divided by t plus 1 minus 1 divided by t plus 1 the whole square, और हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। So therefore the answer is e⁻t divided by t plus 1 plus c, and now on substituting it back I get that this is x divided by log x plus 1 plus c. Okay. So with this exercise 5.5 is done. I hope you have understood all the sums.